Okay. So hi students, today we will discuss the instruction set architecture of the DLX processor. It is also called ISA. It is a complete chapter of your course, and it is the second chapter of the course in which we will have to discuss the details about the instructions of the processor, how the different instructions will be performed, what will be the role of the each and every instruction. We will discuss all these things in detail. Okay, so instruction set or instructions are equally important than the as the hardware of the a computer is important, because it is used to establish the link between the software and hardware. So as we know that whenever we want to perform any task, we will have to write one program, and to write that program we will have to use the different instructions. So instruction will be a basic command for a computer which will give the complete detail of the operands, including the what type of operation will have to be performed. So that is why the instruction set architecture is very important. So it is visible to the programmer or compiler writer. Okay, so this particular instruction set or instruction will be visible, or the user can use that particular instruction set by writing the program by using the different instructions that particular programmer can write the program. Okay, so I will want to compare it to an example before we will go further and discuss the different types of the instruction set, different types of the operands based instruction set architecture. I would like to explain what is the importance of an instruction architecture. Let's suppose we want to ask any task to, हमारा मान लीजिए हमारे पास कोई वर्कर है, ही इज फिजिकली फिट, हट्टा कट्टा है, हम उसको कोई काम कहना चाहते हैं, एनी टास्क हम उसको ऑफर करना चाहते हैं कि तुम ये काम कर ले. He is physically fit, can do everything. It is just similar. We are having one computer. Each and every hardware, whatsoever the hardware is required to perform a task, is available in that particular computer. But how we can give the instruction, how can we give the commands to the computer, or how can we give the commands to our worker, to our worker. हमें उससे काम करवाना है, तो उसको जब तक हम उसको कमांड नहीं देंगे कि तुम ये काम कर लो या वो काम करो, इस तरह से काम करना है आपको, वो आप बिल्कुल आराम से खड़ा रहेगा और आपकी तरफ देखता रहेगा कि ये मुझे कोई काम करे. सो दैट इज हाउ कैन वी ask, or how can we give the command to that particular worker? By communicating through instruction or communicating through a command. वो कमांड जो है वो किसी लैंग्वेज में भी हो सकती है. आप अगर वो बंदा हिंदी जानता है तो आप उसको हिंदी में कमांड दे सकते हो, अगर वो पंजाबी जानता है तो पंजाबी में कमांड दे सकते हो, इंग्लिश जानता है तो आप इंग्लिश में कमांड दे सकते हो. यानी व्हाट्सएवर द लैंग्वेज दैट पर्टिकुलर वर्कर जानता है, आप उसी लैंग्वेज में ही उसको कमांड दे सकते हो या सेट ऑफ कमांड दे सकते हो, जिससे उसे समझ आ जाए कि मुझे काम क्या करना है. एक बार आप उसको कमांड्स दे दोगे, पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस दे दो कि आपको इस तरह से काम करना है, तो वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा. इट इज जस्ट सिमिलर. whenever we want to ask or whenever we want to perform even a single task from a computer, we will have to give the commands, and here we will discuss how the different commands can be executed by the computer. वो वैसा ही अगर आप उसको किसी को, ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिपेंड करता है. अगर आप लो लेवल लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, असेंबली लेवल लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, मशीन लेवल लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, या हाई लेवल लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वर्कर यानी आपका कंप्यूटर जो है वो किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है. सिमिलरली क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग ने कंप्यूटर बनाया, उसने बिल्कुल इसकी वर्किंग फंक्शनिंग वैसी ही रखी है जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग की होती है. जैसे मैंने अभी कहा कि लेट्स सपोज आपके पास एक वर्कर है, आपने उसको कोई काम देना है, तो उसको जो लैंग्वेज आती है आप उसी लैंग्वेज में ही कमांड बनाओगे. नाउ जिसने वो लैंग्वेज डिजाइन करी है और जिस तरह से लैंग्वेज डिजाइनर ने डिजाइन करी है, उसी तरह से ही किसी इंडिविजुअल ने वही लैंग्वेज सीखी है और उसके अकॉर्डिंगली ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. अगर आपको किसी को इंग्लिश में कह दो गेट आउट, सो
अगर इफ यू विल आस्क समवन गेट आउट, तो वो क्या करेगा, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल लिसन दैट गेट आउट वर्ड थ्रू हिज और हर ईयर्स, जो कि इनपुट डिवाइस है। उसने अपने ईयर्स से सुन लिया उस कमांड को और ब्रेन में चली गई। देन ब्रेन विल एग्जीक्यूट दैट गेट आउट वर्ड, जो आपको एक कमांड मिली है कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। उस गेट आउट कमांड को ब्रेन ने डीकोड किया। डीकोड करने के बाद उसे पता चला कि गेट आउट का मतलब होता है कि यहां से बाहर चले जाना। देन दैट पर्टिकुलर पर्सन विल एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर कमांड गेट आउट, जो आपने बोला। अगर कम इन कहोगे तो वो उसको उसी तरह से डीकोड करेगा, और डीकोड करने के बाद उसको समझ आएगी कि हाँ, इंग्लिश में कम इन का मतलब अंदर आना होता है, तो अब मुझे अंदर आना है। दिस इज कमांड फॉर मी, नाउ आई विल हैव टू एग्जीक्यूट एज पर द कमांड गिवन टू मी। जैसे मुझे कमांड दी गई है वैसे ही मुझे एग्जीक्यूट करना है। सो इट विल डिपेंड्स अपॉन द लैंग्वेज टू लैंग्वेज। मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर कोई पंजाबी लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो अगर वो कहे कि कोई एक वर्ड बोले कि मेरे दादा आ रहे हैं, तो पंजाबी में दादा का मतलब ग्रैंडफादर है। सो इट इफ ए पंजाबी पर्सन विल decode that particular command which is dada, will do what, will understand what, my grandfather is coming। बट अगर आप यही कमांड एक बंगाली पर्सन को दोगे कि आपके दादा आ रहे हैं, तो वो क्या समझेगा, my big brother is coming। so that will depend upon the language, how a computer will perform an operation, that will depend upon the command of that particular language or instruction of that particular language। so that is why this instruction set is very important for any computer। so next is the ISA based complexity। so ISA means instruction set architecture is based on what, complexity of the instruction। दो तरह की टू टाइप्स प्रोसेसर्स होते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। दिस कंसिस्ट, वन इज कॉल्ड कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, अनदर इज कॉल्ड reduced instruction set computer। so whatsoever the instruction set we are going to discuss, that will be the RISC based। okay, ये RISC based processor या DLX processor जो है, that is the RISC based processor। next is the ISA or instruction set architecture can also be categorized on the basis of type and location of the operand। के जो ऑपरेंड्स आएंगे, जो डेटा आएगा या जो उसको मैनिपुलेशन करनी है, वो कहाँ से आएगी अदर देन मेमोरी। के डेटा जो है, जो उसको ऑपरेंड मैनिपुलेट करने हैं, वो मेमोरी से आएंगे, रजिस्टर्स में है, एक रजिस्टर में है, एक मेमोरी में है, दोनों मेमोरी में, दोनों रजिस्टर में है, या ALU में है। एक और टाइप होती है स्टैक, जिसमें स्टैक में ऑपरेंड्स होते हैं, पुश एंड पॉप टाइप इंस्ट्रक्शंस इन विच द ऑपरेंड्स विल बी इन द स्टैक। so the ISA or instruction set architecture can be categorized on the basis of the location of the operand and type of the operand। and ये categories हैं। number one is stack architecture। the stack architecture will be what, in the case of stack architecture, this type of instruction set in which the stack architecture is used, in this particular case the operands will be there in the stack area। so stack area or stack will be an area within the memory which is used to define the which is working on last in first out। तो एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिसको हम नॉर्मली ब्रांच रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस या इंटरप्ट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं। तो अगर कोई आर्किटेक्चर इस तरह से डिजाइन किया गया कि जिसमें स्टैक से रिलेटेड है, तो वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे ही काम करेगा कि जो डेटा लास्ट पड़ा हुआ है वही सबसे पहले आएगा, यानी जो आपने रिसेंटली स्टोर किया है वही सबसे पहले रीड होगा, जो आपने सबसे पहले स्टोर किया था वो सबसे लास्ट में store होगा। we will not go into this into the drill of this particular type of architecture because right now we are not using this type of architecture। कोई प्रोसेसर ऐसा नहीं है जो स्टैक आर्किटेक्चर के ऊपर काम करता हो। next is the accumulator architecture। thus microprocessor or processors which are based on accumulator architecture, in this particular case the one operand must be there in accumulator। एक ऑपरेंड हमेशा एक्यूमुलेटर में होना ही चाहिए, तभी वो कोई अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। दूसरा ऑपरेंड आप कहीं से भी ले सकते हो, मेमोरी से, रजिस्टर से या किसी और से, लेकिन ये कंडीशन होती है कि एक ऑपरेंड हमेशा एक्यूमुलेटर में ही होना चाहिए। ओके, ये जब इनिशियली इन 1974 द प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंटेल पीपल एंड दे डिजाइन द प्रोसेसर्स लाइक समथिंग लाइक 8008 एंड देन 8080 और 8085।
8085 और 8080 माइक्रो प्रोसेसर जो थे वो आर्किटेक्चर एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर बेस्ड पे थे कि उसमें अगर आपने कोई अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अगर तो वन ऑपरेंड चाहिए, जैसे अगर आपने नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वन ऑपरेंड ही चाहिए, तो तब तो एक्यूमुलेटर में ही होना चाहिए वो। अगर आपने कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिसमें आपको मोर देन वन ऑपरेंड चाहिए, मोर देन वन नंबर चाहिए, तो उसमें से एक नंबर मैंडेटरी होता था कि एक नंबर वन ऑपरेंड मस्ट बी देयर इन द एक्यूमुलेटर, सेकंड नंबर मे बी एनीवेयर इन द विद इन द रजिस्टर और विद इन द मेमोरी। तो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस वर देयर, अलग अलग इंस्ट्रक्शन हैं उसमें, जिसमें वो आप एक ऑपरेंड जो है वो एक्यूमुलेटर में होना चाहिए, दूसरा कहीं और भी हो सकता है। और उसमें ये भी है, आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन और आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द रिजल्ट और आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेशन, रिजल्ट विल आल्सो बी स्टोर्ड इनटू द एक्यूमुलेटर, वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। तो ये भी आर्किटेक्चर 1980 तक चला, उसके बाद ये आर्किटेक्चर नहीं फेमस हुआ, इतना ज़्यादा नहीं चला, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शन थी कि एक ऑपरेंड जो है वो एक्यूमुलेटर में होना ही चाहिए, इस वजह से ये नहीं हो पाया फेमस, रिस्ट्रिक्शन थी। Then another concept was introduced that is called general purpose register architecture. ये आज भी यही चल रहा है, general purpose register architecture. Okay, so in this particular case, the operands may either be there in memory or may either be there in register. General purpose register में आगे दो तीन टाइप्स हैं इसकी, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस जनरल पर्पस रजिस्टर आर्किटेक्चर, रादर देन के एक्यूमुलेटर पे जाएं कि एक स्पेसिफिक एक्यूमुलेटर ही परफॉर्म करेगा लॉजिकल ऑपरेशन, यहाँ पे सारे के सारे जनरल पर्पस रजिस्टर जो है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, उसमें ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको एक्यूमुलेटर में एक ऑपरेंड होना चाहिए, तो कोई भी ऑपरेंड कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी रजिस्टर में हो सकता है, और आप उसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो किसी भी रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर के ऊपर, किसी भी प्रोसेसर में जितने भी हैं। मान लीजिए किसी में 8 रजिस्टर हैं, तो आठों के आठों ही कैपेबल होंगे टू एक्ट एज एक्यूमुलेटर, टू एक्ट और टू परफॉर्म अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। हाँ, उसमें एक एक्यूमुलेटर भी होगा, उसको स्पेशल पावर्स होंगी, कुछ ऑपरेशन होंगे जो स्पेसिफिक होंगे ऑपरेशन, जिसके लिए एक्यूमुलेटर ही यूज होगा, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जनरल पर्पस रजिस्टर जो है वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें एक ऑपरेंड जनरल पर्पस रजिस्टर में है, दूसरा और सेकंड में भी एनीवेयर इनटू द इट मे बी मेमोरी। तो ये तीन टाइप्स की हैं। फर्स्ट इज द रजिस्टर मेमोरी, that is the meaning of this register memory, means one operand must be there in a register, another operand must be there in memory. So memory can also be accessed as a part of any instruction. Okay, second type is register. ये सबसे फेमस है आजकल, जितने भी रिस्क प्रोसेसर हैं सब में रजिस्टर जो है वो आर्किटेक्चर चलता है। व्हाट इज द रजिस्टर आर्किटेक्चर? इन दिस पर्टिकुलर केस memory can be accessed only to use the to load the data or to store the data, means data manipulation cannot be done from the memory directly memory से आप डेटा रीड या राइट कर सकते हो, लोड या स्टोर कर सकते हो। लोड करोगे तो डेटा रजिस्टर में आ जाएगा, स्टोर करोगे तो रजिस्टर का डेटा मेमोरी में चला जाएगा, लेकिन यू कैन नॉट मैनिपुलेट द कंटेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द मेमोरी, कि आपने एक रजिस्टर में रखा, दूसरा मेमोरी से कॉल करके ऐड करके वहीं स्टोर कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते इस आर्किटेक्चर। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर the data can be accessed from the memory by using load and store instructions only. So it is also called what? Load store architecture. इसको लोड स्टोर आर्किटेक्चर भी कहते हैं, और रिस्क प्रोसेसर जो होते हैं वो इसी आर्किटेक्चर के ऊपर ही काम करते हैं। The next is the memory organization. So in memory architecture or memory organizations, operands are there in memory only, कि मेमोरी में ही डेटा रीड किया, ऑपरेंड 1 भी मेमोरी में है, ऑपरेंड 2 भी मेमोरी में है, वहीं से ऑपरेंड 1 को रीड किया, ऑपरेंड 2 को रीड किया, मैनिपुलेट किया, और फिर से थर्ड ऑपरेंड में या किसी और लोकेशन में मेमोरी में ही सेव कर दिया। यानी एवरी मैनिपुलेशन, एवरी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन विल बी परफॉर्म विद इन द मेमोरी। So there are many advantages and disadvantages of different architecture. तो क्योंकि मेमोरी स्लो होती है, अगर आप टोटली मेमोरी डिपेंडेंट हो जाओगे तो द ओवरऑल एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ द कंप्यूटर विल स्लो, क्योंकि मेमोरी जो है
memories, operations of the memories are very slow. Speed of the memories are very slow as compared to the speed of the processor. जो प्रोसेसर की स्पीड होती है उससे मेमोरी की स्पीड बहुत कम होती है. अगर आप मेमोरी आर्किटेक्चर के साथ जाओगे तो यू विल टोटली डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, और सॉरी मेमोरी. प्रोसेसर की स्पीड जो है वो इमटेरियल हो जाएगी, क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड की कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा. तो आपको टोटली किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, और मेमोरी की स्पीड के ऊपर. दैट इज वाई द रजिस्टर आर्किटेक्चर इज मोस्ट commonly used in nowadays, and this particular architecture is also called load store architecture. Okay, now we will try to understand the DLX processor, जिसके इंस्ट्रक्शन सेट को हमें डिटेल में डिस्कस करना है. व्हाट इज DLX processor? The full form of DLX is DLux. It is DLX processor, and this particular processor was designed and developed by the हेनेसी जिसकी हम बुक पढ़ रहे हैं, हेनेसी एंड पैटरसन, जिसकी बुक रेफर्ड है आपके सिलेबस में. उन्हीं दो लोगों ने इस पर्टिकुलर प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया था, डीलक्स प्रोसेसर को. पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि कम्प्लेक्सिटी कम करके स्टूडेंट ज़्यादा ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएँ इसके इंस्ट्रक्शन सेट को, इसके इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को, एग्जीक्यूशन को, सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन को. So that is why special processor was introduced, which is called Deluxe processor, and it was introduced by the Hennessy and Patterson. Okay. So now we will try to understand what are the different characteristics of this particular processor. It is RISC-based processor. This processor is totally RISC-based. Reduced instruction set computer. ये RISC-based है, तो load store ही करेगा. So simple it is used to do what? Load store instruction set. इसका जो architecture है, instruction set architecture, that is based on load store instruction set. यानी ये manipulation directly नहीं कर पाएगा memory से. If you want to manipulate the data of the memory, then you will have to load that particular data to the general purpose registers of the processor, and then what can you do? You can manipulate the data, and after the manipulation you can store that particular data to the memory. So it is based on load store instruction set. So it is also supports the pipelining. इसमें pipelining भी होती है. So we will discuss the what is the concept of the pipelining in detail in the chapter 3. But for now, what is the definition of the pipeline? The definition of the pipeline is a processor which is having the pipeline structure will having a feature in which that particular processor can be used to perform more than one instruction. The different parts, different stages of more than one instruction at the same time. Simultaneously ये मोर देन वन इंस्ट्रक्शन के अलग अलग पार्ट को एग्जीक्यूट कर सकता है. जैसे हमने पीछे प्रीवियस एक लेक्चर में we have discussed that what will be the sequence of execution of an instruction. Then in that particular lecture we found that the one instruction is divided into 3, 4 or 5 types. It depends upon the what type of processor we are using, but the main stages are fetching, decoding, execution, and along with this read of the operand or write of the operand if required will also be there. So as in the case of RISC-based processor in which load store instruction will be there, so naturally read and write उस दोनों होंगे ही होंगे. तो अगर 5 या 3 parallel instructions execute हों, so that particular structure is called what? Pipeline. So whenever more than one instructions will be executed by the processor at one time, that is called pipeline structure. We will discuss this in detail in the chapter number 3, which is totally based on pipeline. So these are the main characteristics of the Deluxe processor. Next is the register. Deluxe processor में है क्या? This particular processor is having 32 general purpose register. It is having what? 32 जनरल पर्पज रजिस्टर हैं, और उनके नाम क्या हैं? R0, R1, R2 अप टू R31. ये उनके नाम हैं, R0 से लेकर के R31. So out of these, although all these are the general purpose register, but out of this 2 registers are also having the some specific purpose. The value of R0 will remain fixed. By default the value of R0 will be fixed, and that will be 0. That will be 0. 0 फिक्स होती है इसकी वैल्यू जो इसका R0 होता है. एंड
R31 will be used for the jump related instructions. Whenever you want to go for the branch related instructions, then you will have to use the R31 register. Okay, although it is a general purpose register, but its specific function, that is, it can be used as jump related instructions. We will discuss these things in detail in the coming lectures. Along with this, it is also having 32 floating point registers. One are the general purpose registers, which are used to store or manipulate the normal data. But this particular processor, Deluxe processor, is also supporting the floating point manipulation as well. Okay, so इसमें 32 रजिस्टर्स हैं जो फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स हैं और इनके नाम हैं F0 to F31, F0 to F31. So all these registers are of 32 bit each. ये रजिस्टर्स भी 32 हैं और एक रजिस्टर का साइज भी 32 बिट है. So all the registers are also of 32 bit long as well. Okay, तो F0 भी 32 बिट है, F1 2 3 up to 31 सारे के सारे 32 बिट रजिस्टर्स हैं. These register set or register bank, whatsoever you can call. One register bank is for general purpose register, which is having 32 registers. Another register bank is also having a set of 32 bit register of 32 bit each. Size of each register is 32 bit long. Can be used as single precision register. Can be used as a single precision register, and this particular register bank can also be used as डबल प्रोसीजर रजिस्टर एज वेल. डबल प्रोसीजर में आपका डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी क्या होगी 64 बिट. तो आप उसमें 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट को स्टोर कर सकते हो, जिसमें मेंटिसा का साइज होगा और एक्सपोनेंट का साइज होगा और उसमें एक बिट रिजर्व होगी जो कि आपके साइन को रिप्रेजेंट करेगी. ओके, तो आउट दीज 32 रजिस्टर हैं, जो 32 रजिस्टर, इनको आप 32 बिट सिंगल प्रोसीजर की तरह तो यूज कर ही सकते हो 32 को एज इट इज. एट द सेम टाइम यू कैन आल्सो यूज दीज रजिस्टर्स 32 रजिस्टर को 64 बिट डबल प्रोसीजर. उसमें क्या होगा कि दो रजिस्टर को कंबाइन करके यू विल स्टोर द डेटा एज ए 64 बिट. लेट्स सपोज वी वांट टू मेक द ग्रुप, बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं F0 and F1 will make 132 bit, 64 bit will act as a double precision register. F0 and F1, F0 भी 32 बिट है, F1 भी क्या होगा 32 बिट. दोनों मिलके कंबाइन एज ए रजिस्टर पेयर मिलके 0 and 1 मिलके क्या बनाएंगे, एक डबल प्रोसीजन रजिस्टर बनेगा जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी होगी 64 बिट और इसका नाम होगा F0. पहले रजिस्टर से जाना जाएगा जी F0. सिमिलरली F2 and 3 will be combined and will become again another 64 bit double precision register which is used to store the floating point 64 bit floating point result. आप उसमें 64 bit floating point result रख सकते हैं. ओके, तो इसमें एज ए पेयर्स यूज होते हैं, तो ये floating point register. ओके, so next is the data type in the Deluxe register processor. आप इस पर्टिकुलर प्रोसेसर में डेटा जो है मैक्सिमम हैंडलिंग कैपेसिटी आप 8 बिट भी रख सकते हो, 16 बिट भी हो सकती है और 32 बिट भी हो सकती है. So the 32 bit data will be called as one word, as I have already told to you in one lecture. What is the word length? What is the word length of what is the definition of the word length? The word length of a processor is the maximum data handling capacity of that particular processor. अगर आपका प्रोसेसर 16 बिट है तो आपकी वर्ड लेंथ उस पर्टिकुलर प्रोसेसर के लिए 16 बिट होगी. अगर आपका प्रोसेसर 8 बिट है तो उस पर्टिकुलर प्रोसेसर के लिए वर्ड लेंथ जो होगी वो आपकी क्या होगी 8 बिट होगी. बट अगर आपका प्रोसेसर 64 बिट है तो उस पर्टिकुलर प्रोसेसर के लिए जो वर्ड लेंथ होगी दैट विल बी द 32 बिट लॉन्ग. ओके, so if this DLX is, as we know that the Deluxe processor is 32 bit processor, so its word length will be equal to what 32 bit. आप इसमें हाफ वर्ड भी यूज कर सकते हो जो कि 16 बिट होगा, और यू कैन ट्रांसमिट और रिसीव द डेटा विद 8 बिट इंफॉर्मेशन एज वेल, विच इज कॉल्ड 1 बाइट. आप 1 बाइट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकते हो
2 बाइट सेंड कर सकते हो और 4 बाइट्स यानी 32 बिट डेटा भी सेंड कर सकते हो एक टाइम। सो इट इज आल्सो हैविंग द फ्लोटिंग पॉइंट डेटा। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा रिप्रेजेंटेशन है इसमें। एक तो आप नॉर्मल जो डेटा मैनिपुलेशन करते हो जिसमें आप नॉर्मली डेटा को रिप्रेजेंट करते हो, वन पार्ट इज कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। हैव यू एवर हर्ड दिस पर्टिकुलर डेटा रिप्रेजेंटेशन? क्या आपने सुना हुआ इसको, पढ़ा हुआ आपने ये? एनीवन? यस, अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज रेज योर हैंड, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि मुझे इसको डिटेल में बताना आपको या नहीं। यस, आदर्श त्यागी, आप अपने आप को अनम्यूट करो और बताओ। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, मिस्टर आदर्श। It is not used for the, yes, it is used for the fractional value can be used for a large data. If you want to store the large fractional value, हमारे पास बहुत लार्ज डेटा है अगर मान लीजिए और फ्रैक्शनल वैल्यू में है और हम उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते, ओके, देन यू विल हैव टू यूज द फ्लोटिंग पॉइंट डेटा रिप्रेजेंटेशन। ये पर्टिकुलरली डीएसपी प्रोसेसर में यूज होता है, जिसमें आपने कई बार ऐसे कांस्टेंट यूज करने होते हैं जिसमें डेसिमल में फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत लार्ज होती है, तो आप उसकी लास्ट डिजिट तक भी वैल्यू को डिस्कार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ईच एंड एवरी डिजिट आफ्टर द डेसिमल वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। इफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, इफ यू कैन नॉट डिस्कार्ड, देन लार्ज डेटा जैसे है वो अगर आप स्टोर करना हो आपको, तो वो कैसे स्टोर करोगे? दैट विल बी स्टोर्ड थ्रू द फ्लोटिंग पॉइंट डेटा रिप्रेजेंटेशन। ओके, so two types of floating point data representation is available in this particular processor. One is called 32-bit floating point data representation, which is also called the single precision, and another is 64-bit, जिसको हम double precision भी कहते हैं। Now we will try to explain, will not take much time, what is the data floating point data representation and how it can be used. As we have already discussed that the floating point data representation is used to represent the data in decimal value. ओके, अगर हमारे पास लार्ज फ्रैक्शनल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू के बाद बहुत ज़्यादा नंबर है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ओके, तो या हमारे पास बहुत लार्ज नंबर है, तो उतनी बिट्स, अगर हमें बहुत ज़्यादा बिट्स चाहिए, मान लीजिए हमारे पास इतना लार्ज नंबर है कि हमें वो अगर उसको स्टोर करने के लिए 200 बिट्स चाहिए, तो वी कैन नॉट स्टोर द डेटा इन दिस वे। जैसे अगर आप एक्सपोनेंट के साथ वैल्यू लिखते हो, अगर आपको लिखना हो 10 रेज़ टू पावर 19, if you have to represent 2 into 10 raised to power 19, अगर आप इसको फ्लोटिंग पॉइंट में लिखते हो तो इट इज 2 into 10 raised to power 19, रिक्वायर्ड ओनली 3 डिजिट, वन 2 को स्टोर करने के लिए और दूसरा 19 को स्टोर करने के लिए। तो ये आपकी एक इतनी बड़ी वैल्यू को स्टोर कर लेगा। अगर आपको अदरवाइज नॉर्मल डेटा अगर आपको सेव करना पड़े तो आपको 2 के साथ 19 जीरो भी सेव करनी पड़ेगी। तो टोटल यू विल हैव टू सबमिट 20 डिजिट, उसमें आपको 20 डिजिट स्टोर करने पड़ेंगे अगर आपको कहीं पे भी स्टोर करने हो। या मान लीजिए अगर आपको कॉपी पे लिखना हो 2 into 10 raised to power 19 या 2 into 10 raised to power 20, इस पर्टिकुलर वैल्यू को अगर आपको नॉर्मल इंटीजर में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो आपको 2 के साथ 20 जीरो लिखनी पड़ेगी, इतना बड़ा नंबर हो जाएगा सेव करने के लिए। But another way is you can go with the floating point. In this particular representation, you can store the large value. Particularly, this is used in the case of decimal value में हम लोग यूज करते हैं इसको, और DSP में इसकी मेन एप्लीकेशन जो है DSP में। So let's suppose this is the floating point representation, and again I have already told to you it is single precision divided in two parts, single precision and double precision. प्रोसेसर में हम इसको कैसे सेव करें? Let's suppose we want to understand what will be there in the single precision data representation. उसमें क्या होगा? A 32-bit register will be there, as the single precision is a 32-bit data representation. तो उसमें 32-bit register होगा। उसमें out of those 32 bits, the bits last or lower order 23 bits will be reserved to store the mantissa, will be used to store the mantissa. So 23 bits long आप mantissa उसमें store कर सकते हो, and 8 bits will be there to store the exponent. यहाँ पे मैंने E डैश लिखा है,
कई डेटा रिप्रेजेंटेशन में आप सीधा ई भी लिख सकते हो, लेकिन सिंगल जिसको मैं मेथड बता रहा हूँ उसमें आप ई डैश लिखोगे, वो कहाँ से आएगा मैं भी आपको बताऊंगा. So 8 bits will be used for what? To represent the exponent. Okay, and MSB, the most significant bit of the single precision method, is used to represent the sign. अगर ये बिट 0 होगी तो उसका मतलब मैंटिसा आपका पॉजिटिव है, नंबर आपका पॉजिटिव है. अगर ये 1 होगी तो इसका मतलब नंबर आपका नेगेटिव. ओके, सो ऑन द अदर हैंड फॉर द डबल प्रेसिजन में जो है इसका मैंटिसा का साइज और एक्सपोनेंट का साइज लार्ज हो जाएगा, यानी यू कैन स्टोर ए लार्ज नंबर, और बड़ा नंबर आप सेव कर सकते हैं. तो इस केस में जो मैंटिसा का साइज होगा दैट विल बी 52 बिट. So the bit number 0 to bit number 51 of a 64 bit रजिस्टर, इसमें 64 बिट रजिस्टर होगा आपके डबल प्रेसिजन डेटा को सेव करने के लिए, out of which the bit number 0 to bit number 51 means the lower order 52 bits will be used to store the mantissa, and from 52 to 62 11 bits will be used to store the exponent, and the most significant bit, which is the 63 number bit, will be used to store what? Sign of that particular bit. Okay, so exponent, once you will get the exponent of any number, मान लीजिए आपके पास कोई एक नंबर जिसका आपने एक्सपोनेंट निकाल लिया, अब यहाँ पे जो वैल्यू आपको पुट करनी है दैट विल बी द ई डैश, एंड ई डैश विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी ई प्लस 127 फॉर दिस सिंगल प्रेसिजन and 1023 for the double precision. Okay, so now we will try to understand it with an example. This is an example. Let's suppose हमारे पास ये नंबर है 1064.125 जिसका बेस सेक 10. हम इसको फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. ये तो छोटा नंबर है, अब इसमें बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी विल कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी, क्योंकि इसमें तो बाइनरी नंबर ही स्टोर होगा. सो दिस डेसिमल नंबर विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? बाइनरी. सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी. पहले 1460 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, और फिर क्या करेंगे? डेसिमल के बाद वाले पॉइंट को यू विच इज 125 है उसको कन्वर्ट करते हैं. तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ दिस 1460? ये एक वैल्यू आई है जो एक 101101101000 जो कि 1460 की इक्विवेलेंट वैल्यू है, एंड देन वी विल कन्वर्ट दिस 125 into its equivalent value, and its value will be 001 with base of 2. ये हमारे पास एक नंबर आ जाएगा जो होगा, जो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू है 101101101000 डॉट मीन्स डेसिमल 001. ये तो हमारी नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन हो गई जो हमने नॉर्मल कन्वर्ट किया इसको 1460125 को इसमें. ओके, नाउ हाउ वी विल कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर वैल्यू इनटू फ्लोटिंग पॉइंट. फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड है, दैट इज दिस डेसिमल मस्ट बी टू दिस पॉइंट. पहले 1 के बाद ये डेसिमल होना चाहिए. तो वो विल शिफ्ट दिस डेसिमल फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन. ओके, तो ये जितनी डिजिट शिफ्ट होगा उतनी ही एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी. जितने डेसिमल की पोजीशन, डेसिमल अपनी पोजीशन जितनी चेंज करेगा उतनी ही इसकी एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी. तो यहाँ पे ये 10 पोजीशन चेंज कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो यानी ये पोजीशन यहाँ पे 1 के बाद अगर आ रही है, इट इज द ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट, नॉर्मलाइजेशन कहते हैं इसको. सो इट विल बिकम 10 यानी डेसिमल को आपको 1 के बाद डेसिमल लिखने के लिए 1 डॉट इसको 10 पोजीशन चेंज करना पड़ेगा. सो द न्यू नंबर विल बिकम 1.0110101000001. and what will be the value of the exponent? The value of the exponent it will become what? 2 raised to power 10. ओके, वो ये वैसा ही है जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर आपको 2 लाख को अगर रिप्रेजेंट करना हो, 2 लाख, मान लीजिए आपको 2 लाख को रिप्रेजेंट करना है, तो व्हाट विल यू राइट? नॉर्मल में तो आप लिखोगे 2 के साथ 5 जीरो, बट if you want to represent in the floating point, what will you write? You will write 2 into 10 raised to power 5. 2 into 10 raised to power 5. क्योंकि जो डेसिमल पॉइंट आपका 2 लाख के बाद आ रहा था, 5 जीरो शिफ्ट कर दिया आपने डेसिमल पॉइंट. इट विल बिकम 2 into 10 raised to power 5. So the similar approach is there. It will become 1 dot 1 point. सारी वैल्यू आ गई उसकी,
और जो एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी 2⁻10। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ कि मान लो आपके पास एक वैल्यू है 2560 से 2560, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे फ्लोटिंग पॉइंट में, दैट विल बिकम 2.560 इंटू 10⁻3, क्योंकि 3 डेसिमल पॉइंट आपने शिफ्ट कर दिया। So similarly, by doing this particular method, the decimal point will be shifted to this. So now we will try to convert, or we will try to understand how will we store this data into the register which will represent its actual value, जो इसकी फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर है तो साइन की बिट क्या हो जाएगी 0, तो साइन बिट विल बी इक्वल टू 0। एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है 10, तो ई डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे 10 प्लस 127, तो इट विल बिकम 137। 137 की हम इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम यहाँ पे 137 की इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 10001001। ओके, so we will put these 8 bits, these 8 bits will be put over here। यहाँ पे 8 bits आपने पुट कर दी। तो what is the mantissa 10 यानी 1 डॉट को छोड़ के जितनी भी बिट्स हैं आफ्टर डेसिमल जितनी भी बिट्स हैं वो सारी की सारी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दोगे। यहाँ पे तो सिर्फ आपकी शायद 10 बिट्स ही हैं या 10 या 13 बिट्स हैं, शायद 13 बिट्स हैं। तो लेकिन ये कितनी बिट स्टोर कर सकता है 23। बट हाउ विल यू राइट दिस 100 यानी आप 13 बिट यहाँ पे लिख दोगे, देन डॉट 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 0, क्या लिख दोगे डॉट 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 0, बाकी की बिट्स जो है वो आप 0 पुट कर दोगे। ओके, so this is the way how can we represent the floating point number with single precision। सिमिलरली डबल प्रेसिजन में वही है, आपको ये नंबर आपने कन्वर्ट कर लिया, अब आप डबल प्रेसिजन के फॉर्मेट में डाल दो। साइन बिट 0 है तो पॉजिटिव नंबर है इसलिए साइन बिट 0 होगी। मंटीसा आपका 10 बिट है तो 10 बिट ही रहेगा। ई डैश कैसे निकालोगे बाय एडिंग इट विद 1023 से ऐड कर दो 10 से, विच विल बिकम 1033। तो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू जो हो 11 बिट आ जाएगी। ये 11 बिट का साइज लेने के लिए इसको इसलिए कन्वर्ट किया गया है। तो इट विल गिव्स अस द 11 बिट साइज, इट विल बी 1000000101। यहाँ पे पुट कर दो यहाँ पे 11 बिट, जो एक्सपोनेंट की जगह है ई डैश की, यहाँ पे आपका ई डैश आ गया। और मंटेसा आपका कितने बिट है वही 13 बिट है, तो 13 बिट्स एज इट इज लिखनी है। बाकी जो 52 बिट्स से बाकी 49 बाकी जितनी बचेंगी दैट विल बी द 39 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में क्या लिख देना है आपको 0। so this is the way how can we represent the floating point data in computer। okay, so next is the memory is byte addressable। as I have already told you, memory is byte addressable। each and every बाइट एड्रेस की जा सकती है, हर बाइट का एड्रेस होगा, हर बाइट में से डेटा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बट जो एड्रेसेस जनरेट होंगे वो 32 बिट लॉन्ग होंगे। जो एड्रेसेस जनरेट होंगे वो क्या होंगे 32 बिट लॉन्ग। यू कैन रीड द डेटा ऑफ 1 बाइट बट यू कैन नॉट ट्रांसमिट द डेटा फॉर 8 बिट डेटा, 8 बिट एड्रेस। एड्रेस विल ऑलवेज बी 32 बिट लॉन्ग। एड्रेस का साइज हमेशा 32 बिट होगा। हाँ, डेटा जो है उस एड्रेस में 8 बिट भी हो सकता है, 16 बिट भी हो सकता है, 32 बिट भी हो सकता है। ओके, so this is next is the data stored in memory in big endian mode। this we will discuss in the next lecture। two modes are there by using which we can store the data in memory। if the data is more than 8 bit, अगर 8 bit से डेटा ज्यादा हो तो हमें इन दो मोड में से एक सेलेक्ट करना पड़ता है। वन इज कॉल्ड बिग endian, another is called little endian। okay, so in the next class we will discuss what is the big endian and little endian